بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمپیوٹر سائنس سیکنڈ ایئر لیکچر 27. پریویس لیکچر میں ہم نے فزیکل ماڈل کا پڑھا تھا. فزیکل ماڈل میں ہم نے مختلف جو اس کے کمپوننٹس سے اس کو ہم نے ڈسکس کیا. ان میں سے ایک کمپوننٹ جو تھا ڈیٹا ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجی، اس کو ہم نے پریسائز وے میں پڑھا تھا پوائنٹ کے طور پر، لیکن اس میں ڈیٹیل کے طور پر ہم نے اب پڑھنا ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپ کی جو ڈیٹا ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجیز ہیں ان کو کیسے بنایا جاتا ہے. اور یہ کافی اہم کویشچن ہے، لانگ کویشچن کے طور پر الگ سے یہ آ جاتا ہے پیپر میں. تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم. پہلے تو ڈیٹا ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجی کی ڈیفینیشن دیکھ لیں کہ مینی آرگنائزیشن آر یوزنگ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹر نیٹورکس ناؤ ڈیز. These organizations face a significant problem in physical database design. جو فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے اس میں ڈفرینٹ جو ڈیٹا ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجی ہم دیکھتے ہیں. کافی آرگنائزیشن ہے جو لارج آرگنائزیشن ہے، ان میں ڈیٹا ڈسٹریبیوٹ کر کے اسٹور کیا جاتا ہے. اس میں مختلف اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی جاتی ہیں. بعض اوقات آن لائن یعنی اس میں وین کی مدد سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، بعض اوقات لوکل ایریا نیٹ ورک کی مدد سے کیا جاتا ہے، یا میٹروپولن ایریا نیٹ ورک کی مدد سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں ہم نے ڈفرینٹ ٹائپ کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے. دی پرابلم از دیٹ دے ہیو ٹو ڈیسائڈ اینڈ سلیکٹ nodes or sites in the network at which data will be located physically، کہ ڈیٹا جو ہے وہ کہاں پر کنیکٹ ہوگا، کہاں پر سٹور ہوگا، اور اس کی سٹوریج جو اسٹریٹجی ہوگی وہ کیا ہم بنائیں گے تاکہ ڈفرینٹ ٹائپ کے جو کلائنٹس کمپیوٹر ہیں جن کو ہم نوڈ کہہ سکتے ہیں وہ جو ہے کس طرح اس کو ایکسیس کریں گے. تو اگر اسمال نیٹ ورک ہو تو پھر تو یعنی اگر اس میں ہم یہ کہیں کہ جو پرسنل ڈیٹا بیس ہے وہ اگر بنائی جائے تو وہ ایک ہی کمپیوٹر پر ڈیٹا بیس ہوگی، اسی میں فرنٹ اینڈ ڈیزائننگ ہوگی، ایک ہی کلائنٹ ہوگا، ایک ہی وہی یوزر ہوگا. لیکن اگر ملٹیپل یوزرز ہیں تو پھر ڈیٹا کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ کس طرح ہوتی ہے. تو پہلی ایک اس میں آ جاتی ہے سینٹرلائزڈ. یہ عام روٹین میں لوکل ایریا نیٹ ورک میں یوز کی جاتی ہے یا وائڈ میں بھی یوز کی جا سکتی ہے کہ سارا ڈیٹا ایک ہی سرور میں رکھا جاتا ہے، ایک ہی کمپیوٹر میں رکھا جاتا ہے، وہیں سے تمام یوزرز کو ایکسیس دی جاتی ہے. یعنی ڈیٹا بیس ایک کمپیوٹر میں ہوگی، اپلیکیشن پروگرام جو ہیں وہ باقی تمام کمپیوٹرز پر ہوں گے. وہ اس کو لوکل ایریا نیٹ ورک کی مدد سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اور وائڈ ایریا نیٹ ورک کی مدد سے. لوکل ایریا نیٹ ورک میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک سرور بنا لیا، باقی جتنے بھی رومز میں کمپیوٹرز ہیں، آپریٹرز ہیں یا کلرکس ہیں، وہ اپلیکیشن پروگرام کی مدد سے اس ڈیٹا بیس کو ایکسیس کریں گے اور وہ نیٹ ورک ایک وائر کی مدد سے بنایا جا سکتا ہے. یا پھر اس میں وائڈ ایریا نیٹ ورک جیسے یہ نادرا ہے تو ان کا ایک مین آفس جیسے اسلام آباد میں ہے، تو مین آفس ان کا وہاں پر ساری ڈیٹا بیس ہوتی ہے. پاکستان کی جو پاپولیشن کا ڈیٹا ہے وہیں پر سٹور ہوتا ہے، یہ آن لائن وہیں سے ڈیٹا ایکسیس کرتے ہیں. تو اس طرح یہ جو ہے مختلف اسٹریٹجی ہے. تو اس میں پہلی جو ہے وہ سینٹرلائزڈ کہ سارا ڈیٹا ایک ہی جگہ پر ہوگا. ان دا اسٹریٹجی آل ڈیٹا از لوکیٹڈ ایٹ سنگل سائٹ. اٹ از سمپل اینڈ ایزی ٹو کنڈکٹ. دس اسٹریٹجی ہیز 3 ڈس ایڈوانٹیجز. اس کے یہ ایڈوانٹیجز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. ایڈوانٹیجز میں یہ آ جاتے ہیں کہ اگر سینٹرلائز ڈیٹا ہوگا تو اس کا جو بیک اپ ہے وہ کریٹ کرنا آسان ہے. یعنی ایک ہی کمپیوٹر ہے، اسی کا بیک اپ لینا ہے آپ نے، اسی کا بیک اپ اسٹور کرنا ہے. اگر ڈیٹا بیس میں کوئی پرابلم ہے تو ایک ہی اس کو ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے، مینٹین کرنا ہے. اگر سافٹ ویئر کا یا ہارڈ ویئر کا پرابلم ہے تو سرور کا ایک ہی کمپیوٹر کو ہم نے مینٹین رکھنا ہے. وہ اگر صحیح ہوگا تو باقی ہر جگہ پر ایزیلی ایکسیسیبل ہوگا. لیکن اس کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ اس میں یہ آ جاتے ہیں کہ ڈیٹا اسٹورڈ ایٹ ریموٹ سائٹ از ناٹ ایکسیسیبل ریڈلی. کہ ہر وقت وہ ڈیٹا ہر پرسن تک، ہر کلائنٹ تک ایکسیس کرانا یہ خاصا ایشو ہو سکتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا اگر ڈیٹا بیس میں پرابلم آ گیا یا اس مین سرور میں پرابلم آ گیا تو تمام جگہ پر وہ ڈیٹا ایکسیس نہیں ہو سکے گا. کوئی بھی یوزر کوئی بھی کام پرفارم نہیں کر سکتا. تو وہ اس کو کمپیوٹر کو عام روٹین میں اس کے ساتھ ایک بیک اپ کمپیوٹر بھی لگایا جاتا ہے تاکہ اگر ایک میں کوئی پرابلم آ جائے تو دوسرا کمپیوٹر فوری طور پر
उसको रिप्लेस किया जा सके, ताकि यूज़र जो हैं वो ज़्यादा देर तक उसमें फ्री ना हो या ज़्यादा देर तक डाटा को एक्सेस ना कर पाएँ, तो इस वजह से फ़ौरी तो उसको एक्सेस दी जाती है। डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट में बी वेरी हाई, कि अगर हम ऑनलाइन एक्सेस कराते हैं तो डाटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डाटा की जो एक्सेस है, वो उसमें रखी जाती है, कॉस्ट उसकी। थर्ड्स में डाटा बेस सिस्टम फेल्स टोटली व्हेन द सेंट्रल सिस्टम फेल, जब सेंट्रल सिस्टम फेल हो जाएगा तो फिर पूरा कंप्यूटर जो है वो उसमें डाटा बेस सिस्टम फेल हो जाएगा। सेकेंड इसमें आ जाता है पार्टीशन। पार्टीशन में यह होता है कि डाटा को मुख्तलिफ पोर्शन में डिवाइड कर लिया जाता है, भले वो 2 पोर्शन में हो या 4 में हो या जितने में, तो वो ये आम रूटीन में डिपार्टमेंटल डाटाबेस जो है उसको हम ये कह सकते हैं पार्टीशन, कि हर डिपार्टमेंट की अपनी एक डाटाबेस बना ली जाती है, बाद में उसको कंबाइन किया जा सकता है। तो उसमें डिपार्टमेंटल डाटाबेस जो है हर डिपार्टमेंट में, जैसे सेल का डिपार्टमेंट है, परचेज़ का डिपार्टमेंट है, अकाउंट का है, इन्वेंट्री का है, तो वो अलग अलग उसकी डाटाबेसेस का पोर्शन बना लिए गए। उसके बाद उनको हर एक का बैकअप, हर एक का उसमें जनरेट करना होता है। कॉलेज की अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे मुख्तलिफ अगर डिपार्टमेंट हों, कि जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, एडमिशन ब्लॉक है, एग्ज़ामिनेशन ब्रांच है, तो हर एक की डाटाबेस अगर सेपरेट बना ली जाए तो भी इसमें बनाई जा सकती हैं। इसका बेनिफिट जो है वो ये हो सकता है कि अगर एक में कोई प्रॉब्लम हो तो बाकी उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो बाकी डिपार्टमेंट अपना काम करते रहेंगे। तो इन दिस स्ट्रेटजी डाटाबेस इज डिवाइडेड इनटू पार्टीशंस और फ्रेगमेंट्स। ईच पार्टीशन इज़ असाइंड अ पर्टिकुलर साइट। हर एक पार्टीशन में ये भी हो सकता है कि भाई अलग अलग नेटवर्क बने, जैसे सेल का एक डिपार्टमेंट है तो उसमें एक नेटवर्क हो, उसमें एक्सेस हो रहा हो, परचेज़ का डिपार्टमेंट है तो उसमें एक्सेस हो रहा हो, तो उसके कई कंप्यूटर भी हो सकते हैं, यानी डिफरेंट जो सर्वर्स हैं वो बनाए जा सकते हैं, हर एक का अलग से कंप्यूटर भी हो सकते हैं। तो इसमें मेजर एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रेटजी इज़ द डाटा इज मूव क्लोज़र टू लोकल यूज़र, के यूज़र के करीब तरीन होता है, बाकी उसमें डिस्टर्ब नहीं हो सकते। यानी उसमें अगर परचेज़ का, या अगर हम कॉलेज की एग्जांपल लें तो एडमिशन ब्लॉक का अगर कंप्यूटर की डाटाबेस सही काम करे, एग्जामिनेशन की डाटाबेस में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जितने भी यूज़र्स होंगे वो डिस्टर्ब होंगे, लेकिन बाकी जो है वो काम प्रॉपर्ली होता रहेगा। तो डाटा जो है वो आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो मेन प्रॉब्लम ये होता है कि हर एक का बैकअप अलग अलग जनरेट करना होता है, और हर एक तक इंफॉर्मेशन जो है वो रिन्यू करनी होती है आफ्टर 1 डे या आफ्टर सम आवर्स, ताकि जैसे नए एडमिशन आ रहे हैं या कोई और इन्फॉर्मेशन, तो बाकी डिपार्टमेंट्स तक भी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचे। तो उसके लिए उसको सिंक्रोनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली जनरेट करना होता है। थर्ड इसमें जो स्ट्रेटजी है वो अडाप्ट की जा सकती है रेप्लिकेटेड में ये होता है कि देखिए पार्टीशन में तो हो गया, एडमिशन वालों के पास सिर्फ एडमिशन का डाटा है, एग्ज़ामिनेशन वालों के पास सिर्फ एग्ज़ामिनेशन का डाटा है, बाकी डाटा वहाँ तक नहीं जाएगा। रेप्लिकेटेड में ये होता है कि कंप्लीट डाटाबेस की डिफरेंट जो कॉपीज़ हैं वो जनरेट की जाती हैं, उनको हर कंप्यूटर पर रख दिया जाता है, कंप्लीट डाटाबेस। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कि वही सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम प्रॉपर रखा जाता है कि अगर 5 स्टूडेंट के नए एडमिशन हुए हैं तो बाकियों के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, या अगर किसी के ड्यूज़ आए हैं तो वो बाकियों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो उसमें उसकी प्रॉपर जो सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस है कि बाकियों तक भी वो इन्फॉर्मेशन फौरी पहुंच जाए, या कुछ टाइम के बाद वो अपडेट हो जाए, तो उसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम बनाया जाता है। तो इसमें रेप्लिकेटेड में इन दिस स्ट्रेटजी फुल कॉपी ऑफ डाटाबेस असाइन टू मोर देन वन साइट। और मेन बेनिफिट इसमें ये आ जाता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर एक कंप्यूटर से एक्सेस नहीं हो रही तो उसको बाकी कंप्यूटर से हम एक्सेस कर सकते हैं। बट इट दिस स्ट्रेटजी मैक्सिमाइज लोकल एक्सेस, हर पर्सन इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। एक डाटाबेस, एक कंप्यूटर में अगर डाटाबेस में कोई प्रॉब्लम आ गया तो बाकी उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो स्टोरेज लॉस है वो खासा होता है, क्योंकि डाटाबेस है उसकी कॉस्ट जो है सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की, स्टोरेज की, वो जो है उसमें उसको बेयर करना होता है। तो इसमें चेंजेस मस्ट बी रिलायबली प्रोसेस्ड एंड सिंक्रोनाइज्ड एट ऑल साइट्स, के तमाम जगह पर इंफॉर्मेशन कुछ टाइम के बाद वो अपडेट हो जाए। मुसलसल तो उसको अपडेट नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ टाइम के बाद सिंक्रोनाइजेशन का ऑटो प्रोसेस भी लगाया जा सकता है कि हर
2 घंटे 6 घंटे के बाद हो जाए, या फिर 1 दिन के बाद इंफॉर्मेशन दूसरों तक, वो इंफॉर्मेशन की अहमियत पर या उनकी इम्पोर्टेंस पर डिपेंड करता है कि किस तरह उसको हमने शेयरिंग करनी है। फोर्थ, इसमें हाइब्रिड आ जाता है। हाइब्रिड जो स्ट्रेटजी है उसमें डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल। एक ऐसा डाटा होता है जिसमें मुसलसल चेंजेस होती हैं, एक ऐसा डाटा होता है जिसमें चेंजेस नहीं होती इतने। तो क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल आ जाता है। इसमें क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स आर स्टोर्ड एट मल्टीपल साइट्स। जो क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स हैं वो मल्टीपल साइट्स पर स्टोर किए जाते हैं। मल्टीपल साइट्स पर आम रूटीन में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है जो काफ़ी हद तक स्टैटिक रहे, जिसमें चेंजेस कम अकर हों। जैसे एडमिशन है, तो एडमिशन कॉलेजेस में शुरू के जो दिन होते हैं उसमें एडमिशन 1 महीना 2 महीना तो कंटिन्यू रहते हैं। उसके बाद जब एडमिशन क्लोज़ हो गया फिर वो इन्फॉर्मेशन कम ही चेंज करनी होती है। जैसे स्टूडेंट के रिकॉर्ड हैं एडमिशन के, तो वो एक बार तो उसमें स्टोर कर दिए, उसके बाद चंद एक रिकॉर्ड होते हैं कि जिसमें किसी का एड्रेस चेंज हो गया, किसी का फ़ोन नंबर चेंज हो गया, ईमेल एड्रेस चेंज हो गया, या कोई और इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई। अदरवाइज़ बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है उसके बाकी तमाम कंप्यूटर की। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि कांस्टेंट रहे मोस्टली, तो उनको तमाम यूज़र्स तक स्टोर कर दिया जाता है ताकि वो जिस वक्त भी एक्सेस करना चाहें तो वो फौरी तौर पर अपने कंप्यूटर से एक्सेस कर सकें, उनको सेंट्रलाइज्ड एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ इसमें नॉन क्रिटिकल होते हैं कि जिसमें चेंजेस बार बार अकर होते रहते हैं। जैसे ड्यूज़ हैं, तो ड्यूज़ डेली बेस पर स्टूडेंट जो है वो पे कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ने आज पे किए, कुछ ने कल पे किए, तो वो बार बार इंफॉर्मेशन एक्सेस हो। अगर इसको एक ही साइट पर रखा जाता है, एक ही कंप्यूटर में एक ही सर्वर से एक्सेस दी जाती है, ताकि अगर चेंजेस अकर होंगी तो वो एक ही जगह पर होंगी, बाकियों तक अगर किसी ने ड्यूज़ देखने होंगे तो वो वहीं एक ही कंप्यूटर से एक्सेस कर देगा, ताकि उसमें सिंक्रोनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा हर वक्त जो है वो उसकी अपडेशन ज़रूरी नहीं है। जैसे 4 यूज़र हैं तो उसमें आज या एक के पास किसी स्टूडेंट ने ड्यूज़ जमा कराए तो वो फौरी तौर पर मेन कंप्यूटर में, सेंट्रल कंप्यूटर में अपडेट हो जाएगा। कोई और जगह से अगर कोई यूज़र देखना चाहे कि मेरे कितने ड्यूज़ जमा हो चुके हैं, तो किसी और क्लर्क के पास भी जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन उसके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ही ओपन होगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स आर स्टोर्ड एट वन साइट ओनली, के एक ही साइट पर स्टोर रहती है। तो ये डिफरेंट स्टोरेज जो स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं तो ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती हैं कि आया ऑर्गेनाइजेशन में आप सेंट्रलाइज स्टोरेज रखना चाहते हैं, पार्टीशन तो पार्टीशन है, उसके अलावा रेप्लिकेटेड रखना चाह रहे हैं या हाइब्रिड। ये डिपेंड करता है कि उसकी कॉस्ट वो कितनी पे कर सकते हैं, कितनी फैसिलिटीज़ वो दे सकते हैं। तो यहाँ तक ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ थी। नेक्स्ट फिर लेक्चर में हम आगे फर्दर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।